السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 101 غزل نمبر 1 شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ آئیے آج اس غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غزل کیا ہوتی ہے، غزل کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، لہذا شاعر کا یہاں تعارف پیش کیا گیا ہے، اس سے دیکھتے ہیں جان پہچان میں کہ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ وہ 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ اب ان کا اصل نام جو تھا وہ خواجہ حیدر علی تھا اور تخلص ان کا آتش تھا، اور یہ 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سینی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ اب کم سن تھے، یعنی کم سن یعنی کم عمر تھے، اور اسی میں وہ یتیم ہو گئے، یعنی والد کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ یتیم ہو گئے، لہٰذا انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ نواب محمد تقی خان حوض کے یہاں ملازم ہو گئے۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ آتش کا انتقال 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ اب اس میں دو الفاظ ایسے ہیں، جیسا پہلا ہے ہمراہ، ایک لفظ ہے ہمراہ۔ اب یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہم اور ایک راہ یعنی راستہ۔ اب دو الفاظ کو مل کر جو ایک لفظ بنتا ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو مرکب الفاظ کہتے ہیں یا مرکب لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ آیا تھا خفا ہونا۔ کیا ہونا؟ خفا ہونا۔ خفا ہو کر انہوں نے رشتہ کیا کر دیا تھا؟ توڑ دیا تھا، مطلب ناراض ہونا، کسی بات پر وہ ناراض ہو گئے تھے۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ دربار سرکار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا، یعنی دربار سرکار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے۔ اب خواجہ حیدر علی آتش جو تھے وہ قناعت پسند تھے۔ اب قناعت پسند کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا انسان جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو چیز نہ ملے اس پر صبر کرے، مطلب ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہے، اسے قناعت پسند کہتے ہیں۔ تو انہیں فقیرانہ زندگی گزاری اور لکھنوی طرز نمایاں رہا ان کی شاعری میں۔ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا ہے اور جذبات و احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا ہے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی ہے، یعنی شاعر کے یہاں اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں تصوفانہ مزاج ملتا ہے۔ تصوفانہ مزاج یعنی ایسا مزاج جو متقیوں کا ہوتا ہے، یعنی جو متقی لوگ ہوتے، پرہیزگار ہوتے، دیندار لوگ ہوتے ہیں، تو دینی پہلو جس کو کہیں گے، اس کے معنی تو بہت گہرائی کے ساتھ جائیں گے۔ تصوف کے معنی ہوتے تزکیہ نفس کرنا، تزکیہ نفس کرنا یعنی نفس کی صفائی کرنا ہے، اپنے خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اپنے خواہشات کو مار دینا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اور تصوف ایک بہت بڑی وسیع معنوں میں آتا ہے کہ تصوف سے منسلک لوگ رہتے ہیں انہیں صوفی کہتے ہیں۔ دیندار لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں اخلاقی مضامین ملتے ہیں، تزکیہ نفس کے مضامین ملتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے بہتر انداز میں پیش کرنے کے جس کو اخلاقی مضامین کہیں گے، اور ان کے خیالات و جذبات میں یہ تمام چیزیں بیان ہوتی ہے شاعری میں۔ یہ شاعری کی ان کی خوبیاں ہے۔ اب دیکھتے ہیں پہلا مصرع، جس کو ہم پہلا شعر جس کو ہم لوگ مطلع کہتے ہیں، کیونکہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ اگر اس لیے مطلع ہوتا ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر دوسرا شعر بھی ایسا ہو کہ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، تو ایسے شعر کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ اور آخری جو شعر ہوتا ہے جہاں شاعر اپنی بات کو منقطع کرتا ہے، قطع کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ چاہے شاعر اس میں اپنا تخلص بیان کرے یا نہ کرے، لیکن آخری جو شعر ہوتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ آئیے پہلا شعر۔ ادب تاچن اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ اب اس میں لفظ آیا تاچن، معنی ہوتے کب تک۔ دوسرا لفظ آیا دستے ہوس،
दस्ते हवस। हवस के माने लालच, दस्त यानी हाथ, लालची हाथ। अब यहाँ शायर की मुराद क्या है देखो। अब शायर अपने एतबार से अलग माने लेता हो या वो दौर के हालात अलग हो, लेकिन इस वक्त हम क्या क्या माने इसके ले सकते। पहले माने अगर लेना है तो ये ले सकते कि दुनिया ये लालची है। हवस के हाथ मतलब लालची हाथ यानी लोग कि दुनिया लालची है, लोग दुनिया में रहने वाले लोग लालची कहलाते हैं। और लिहाजा ऐसे लोग जो लालची हो जाए, कातिल कहाँ गया, कातिल भी कहाँ गया, दुनिया क्या उसको कहेंगे, लालची लोगों को कातिल भी कहाँ गया, बुरा भी कहाँ गया। ऐसे लोग जो दुनियादार होते हैं, दुनिया दुनिया करते रहते हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि कब तक मैं आपका अदब करूं, कब तक उन लोगों का मैं अदब करूं जो लोग हवस होते हैं, लालची होते हैं। साथ ही साथ समझ सकता ने अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। अब लग है दोष, दोष के माने कंधा, कि ऐसे लोगों के सामने मैं कब तक अदब से पेश आऊं जो लोग लालची होते हैं। ये एक मुरादी मानी है। दूसरी मानी ये ले सकते हैं कि शायर इस शेर में कहना चाहते हैं, दो लफ्ज उन्होंने लिए हैं, एक दस्ते हवस और दूसरा कातिल। और दोनों जो लफ्ज उन्होंने लिए हैं ये दुनिया के लिए है कि दुनिया लालची हाथों की तरह है, दुनिया कातिल की तरह है। और ये दुनिया को दस्ते हवस और कातिल कहाँ गए। तो शायद जब किसी शेर में किसी चीज को बराह रास्त दूसरी नहीं, शायद जब किसी शेर में किसी चीज को किसी चीज के मुशाबा कहने की बजाय बराह रास्त वही चीज कह देता है तो उसको हम इस्तियारा कहते हैं। जैसे यहाँ दुनिया को दस्ते हवस कहा गया, दुनिया को कातिल कहा गया। तो शायद इस शेर में कहना चाहते हैं, सनत इस्तियारा इस्तेमाल करके कहना चाहते हैं कि दुनिया के मशगूली में, दुनिया के उतार चढ़ाव में, जिसको हम लोग नशेबो फराज कहते हैं, कि दुनिया के नशेबो फराज में मैं इतना मगन हो चुका हूँ, मसरूफ हो चुका हूँ कि मुझे अपने अल्लाह के सामने बंदगी, अल्लाह की बंदगी करने के लिए यकसुई नसीब नहीं होती। मैं अल्लाह ताला का जो हक है बंदगी का वो अदा नहीं कर सकता। इसकी वजह से मेरी गर्दन झुकी हुई है, मेरे कंधों पे जो बोझ है दुनिया का, वो दुनिया का बोझ होने की वजह से जो अल्लाह ताला का बंदगी का बोझ है वो सही अदा नहीं हो पा रहा है। अब इसमें शायर ने दो अल्फाज और इस्तेमाल किए गए, एक अदब और दूसरा अब। एक लफ्ज अदब इस्तेमाल किया गया और दूसरा लफ्ज अब इस्तेमाल किया गया। और हमने इससे पहले कवायद में पढ़ चुके हैं कि शायद जब किसी शेर में शायद जब अपने कलाम में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें एक लफ्ज ज्यादा, एक हर्फ ज्यादा या कम हो। जैसे एक लफ्ज है अदब और दूसरा लफ्ज है अब, और इसमें ऊपर के इसमें अदब, अदब में दाल जायद है और अब में दाल नहीं है। तो शायद जब अपने कलाम में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें एक लफ्ज कम या ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तजनी से जायद व नाकिस कहते हैं। उसे तजनी से जायद व नाकिस कहते हैं, जायद व नाकिस कहते हैं। तो ये शेर सनत जायद व नाकिस का भी है और तजनी से जायद व नाकिस का भी है, और ये शेर इस्तियारा के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा शेर, बाहर एक दिल के दागों ने दिखाई चश्मे कातिल को, दहाने जख्म सीना बन गया दरवाजे गुलशन का। अब इस शेर में देखिए, इस शेर में शायर कह रहे हैं कि मेरे चाहने वाले ने मेरे दिल की तरफ देखा तो मेरा दिल का दरवाजा खिल गया। खिल गया मतलब मेरे दिल के अंदर कई जख्म है, मैं जख्मों का मारा हूँ। मुझ पर मेरे महबूब ने, मेरे चाहने वाले ने मुझ पर जख्म अरे सितम ढाए है। लेकिन जब ने उसने मुझको पूछा या मुझको देखा तो मेरा जो दिल था ये गुलशन बन गया। हालांकि क्या है अंदर, दिलों के अंदर जख्मों से चूर है, यह जख्म है, जख्मों से भरा हुआ उनका दिल है। लेकिन उन्होंने फौरन अपनी गमों को छुपा लिया और दिल के दरवाजे को उन्होंने फौरन क्या बना लिया, गुलशन बना लिया, बाग बना लिया। मतलब अपने दिल के अंदर की जो जख्म, दिल के अंदर जो जख्म थे या जो मुश्किलात थी या जो तकलीफें थी जो महबूब की तरफ से मिली थी, उन्होंने उसको खत्म किया और उसको छुपाया, उसका इख्फा किया और इजहार इस बात का किया कि मेरा दिल खुश है और मेरे दिल में बहार है, मेरा दिल गुलशन की तरह है, मेरे अंदर कोई तकलीफ, कोई गम नहीं है। अब तीसरा शेर देखिए, कड़ापन आगे मर्दाने खुदा के चल नहीं सकता, कफे दाऊद में यकसा है आलम मोम व आहन का। अब यहाँ दो लफ्ज है, एक मोम और दूसरा लफ्ज है आहन।
अब मोम के माने नर्म होते हैं, मोम नर्म होता है, और आहन जो होता है, मोम तो मोम होता है लेकिन नर्म होती है उसकी सिफत, और आहन जो होता है वो सख्त होता है जिसको हम लोहा कहते हैं। तो इसकी सिफत नर्म है और इसकी सिफत सख्त है। नर्म मोम नर्म है, मोम है, और ये आहन है लोहा। तो ऐसा शेर जिसमें शायद दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, शायद जो अपने कलाम में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे के मुतजाद हो या एक दूसरे के लिए मानों में उनके अंदर तजाद पाया जाता हो, तो ऐसे शेर को सनत तजाद कहते हैं। यहाँ मोम और आहन आने की वजह से ये शेर भी सनत तजाद है। अब लगता है कड़ापन। अब कड़ापन किसे कहते हैं कि कड़ापन उसे कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर सख्ती होती है बोलने में, किसी न किसी चीज में सख्ती होता है, अक्सर बोलने में सख्ती होती है, या फिर उसके अंदर तकब्बुर होता है या घमंड होता है, चाहे दुनिया की चाहत का हो, दुनिया के माल और दौलत का हो, किसी भी चीज का उसके अंदर तकब्बुर होता है, घमंड होता है। तो शायर ने उसको यहाँ कड़ापन के नाम से याद किया है। तो कड़ापन आगे मर्दाने खुदा के चल नहीं सकता। ऐसे लोग जो होते हैं, जो लोग मर्दाने खुदा होते हैं, मर्दाने खुदा यानी वो लोग जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, दीनदार लोग होते हैं, अल्लाह के बरगिज़ा बंदे होते हैं, उनके सामने कोई कड़ापन नहीं चलेगा, कोई तकब्बुर नहीं चलेगा। शायद इस शेर में कहना चाहते हैं कि इंसान के अंदर सख्ती हो, नसीहत करे कि अगर आपके अंदर सख्ती हो तो अपनी सख्ती को कम करो, आपके अंदर तकब्बुर हो तो कम करो, आपके अंदर घमंड है उसको भी कम करो, क्योंकि तकब्बुर, घमंड और ये तमाम जो चीजें हैं जो इंसान वक्ती तौर पर उसे बहुत कुछ समझ लेता है, लेकिन ये तमाम चीजें वक्ती होती है और एक वक्त आता है तमाम चीजें खत्म हो जाती है। लिहाजा नसीहत करे कि अगर सख्ती है और अगर तकब्बुर है, घमंड है, तो उसको कम कर दो। क्यों कम कर दो? आगे दिया है कफे दाऊद में यकसा है आलम मोम व आहन का। अब लफ्ज है कफ। अब कफ के माने होते हैं हथेली, जिसको हम लोग हाथ कहते हैं, और दाऊद से मुराद यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम है। दाऊद से मुराद क्या है? दाऊद से मुराद है दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद से मुराद है दाऊद अलैहिस्सलाम। और शायद जब किसी शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करता है तो हम शेर को क्या कहते हैं? सनते तलमी का शेर कहते हैं। यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। शायरी समझाना चाहते हैं कि सख्ती को छोड़ दो, नरमी को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ एक मामला यह है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में जब आहन आता था, लोहा आता था, तो आने वाला लोहा भी क्या बन जाता था? मोम बन जाता था। इसके लिए सख्ती को कम कर दो और अपनाइयत लाओ। यहाँ एक लफ्ज और एक आया आलम। आलम के माने अलग अलग होते। एक आलम के माने जहां होते जो आमतौर पर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ मुराद आलम यानी क्या है? कैफियत, हालत जिसको कहते हैं, सिचुएशन जिसको कहा जाता है आलम कहते हैं, तो कैफियत कहते हैं, हालत को कहते हैं। कि यहाँ कहते हैं कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा भी आता था तो वो भी क्या बन जाता था? मोम बन जाता था। इसके लिए आपके अगर आप किसी के आपका अंदर तकब्बुर हो, घमंड, उसको क्या कर दो? छोड़ दो। क्योंकि मर्दाने खुदा, ऐसे लोग जिनको हम नेक लोग कहते हैं, इनके आगे सख्ती बरतने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया वक्ती है, इसको छोड़कर जाना है और जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं। इसके तकब्बुर, गुरूर, घमंड, इन तमाम चीजों से गुरेज करना है, सख्ती से भी। अगला शेर देखो, दरे फिरदौस पर रिजवा से रुखसत कौन लेता है, समझता हूं मैं खेल एक फांदना दीवारे गुलशन का। अब अगले शेर में पहला लफ्ज है फिरदौस, दूसरा लफ्ज है रिजवा। अब रिजवा जिसको हम जन्नत का दारोगा माने लिए जाते हैं, फिरदौस के माने जन्नत लिए जाते हैं। अब जबकि रिजवा का जिक्र आया, फिरदौस का जिक्र आया, तो ऐसे शेर को भी हम सनत तलमी कह सकते हैं, कहते हैं। लेकिन यहाँ मुराद क्या है कि शायर आगे कहना चाहते हैं, समझता हूं मैं खेल एक फांदना दीवारे गुलशन का। अब देखो ये क्या कह रहे हैं शायर? यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब मुझे अपने महबूब से मिलने जाना होता है, मेरी चाहत वाली जगह या मेरे महबूब से, मुझसे मोहब्बत करने वाले इंसान से मिलने जाना होता है, मेरे महबूब से मैं मिलने जाता हूँ, तो चाहे रास्ते में दारोगा, चाहे रास्ते में कोई रोकने वाला, या दरे फिरदौस के दरवाजे पर, फिरदौस यानी जन्नत के दरवाजे पर, तो यहाँ जन्नत मुराद न लेते हुए महबूब का दरवाजा, जब महबूब के दरवाजे पर मैं जाता हूँ तो वहां अगर रिजवा खड़ा है, रिजवा खड़ा मतलब कोई रोकने वाला, कोई पहरेदार अगर खड़ा है, तो उसके खड़े रहने से मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कि मेरे अंदर एक सिफत है कि मैं अपने महबूब को देखने के लिए, अपने महबूब से मिलने के लिए, चाहे वो कितना भी
बेइल्तिफाती करता हो या कितना भी मुझसे दूर भागता हो, लेकिन उसके देखने के लिए मैं जब दर फिरदौस पर जाऊंगा, महबूब के दरवाजे पे जाऊंगा, रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट हो, कोई पहरेदार हो, कोई रिजवा हो, कोई वहां ठहराने वाला हो, रुकाने वाला हो, तो उसको बातों में उलझाकर उस वहां जो दीवार रहेंगी, जैसे हम गुलशन में एक तरफ से उस तरफ चले जाते हैं, उसी तरह वहां आने वाली रुकावट, चाहे वो दीवार ही क्यों न हो, मैं उसको फान कर उस तरफ चला जाऊंगा। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत है कि मैं दूसरे पार भी चला जाऊंगा, वहां जाकर अपने महबूब का दीदार करूंगा और फिर वापस आऊंगा। दरमियान में आने वाली रुकावटों से मेरा कोई तस्कीर, मतलब वहां मेरा कोई रुकावट मेरे लिए मुश्किल डाल नहीं सकती, बल्कि रुकावटों को फान कर दूसरी तरफ जाना, ये मेरा क्या उसको कहेंगे, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मैं इतना भी कर सकता हूँ। अगला शेर, हुई है मर्दुम दुनिया की सूरत से बेजारी, गुमा होता है अपने साये पर भी हमको दुश्मन का। अब शायर क्या कहते हैं, देखो इसमें शायर कहते हैं, पहला लफ्ज है मर्दुम, पहला लफ्ज है मर्दुम, मर्दुम से मुराद लोग। शायर कहना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों से मैं इतना बेजार हो चुका हूं। लफ्ज बेजार आया, अब बेजार के माने होते हैं मुतनफ्फिर, मुतनफ्फिर के माने होते हैं बेजार होना, नफरत करना, तनफ्फुर करना। तो शायर कहना चाहते हैं कि दुनिया के हालात और हादिसात और दुनिया की बेवफाई और दुनिया की तमाम चीजों की वजह से मैं इतना मुतनफ्फिर हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ कि कितना परेशान हो चुका हूँ। गुमा होता है अपने साये से भी हमको दुश्मन का। जब मैं चलता हूँ तो मेरा साया मेरे साथ साथ चलता है, तो मेरे साया भी मुझको नजर आ जाए तो मुझको यूं लगता है कि मेरा दुश्मन मेरे पीछे पीछे मेरी बुराई करने या मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। अपने साये से भी मुझे अपने साये से भी डर लगने लगा है। इतनी दुनिया बेवफा तो नहीं, बेवफा है, या दुनिया में इतनी तकलीफें दी जा रही है। अब अगला, सताया है निहायत इनकलाबे दहर ने हमको, रहा करता है चश्मे तर के ऊपर गोशे दामन का। इनकलाब लफ्ज है यहाँ पे, इनकलाब, जिसको हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं लफ्ज इनकलाब। इनकलाब के माने होते तगय्युर, तब्दीली। अब दूसरा लफ्ज है दहर, दहर यानी जमाना, वक्त, दौर। तो जमाने यानी इनकलाबे दहर, जमाने का यानी जो जमाने की जो तब्दीलियां है, यहाँ दिया है देखो क्या, सताया है निहायत इनकलाबे दहर ने हमको, रहा करता है चश्मे तर के ऊपर वो शे दामन का। यानी जमाने की तब्दीलियों ने, इनकलाबे दहर, दहर यानी जमाना, जमाने की तब्दीलियों ने हमको इतना सताया है कि हमेशा हमारी आंखें जो होती है वो तर होती है। हमारे आंखों के गोशे पर, हमारे आंखों के किनारों पर हमेशा हमारी आंखें तर होती है कि वक्तन फौक्तन हमारी आंखों से आंसू जारी होते हैं। मतलब कदम कदम पर जमाने दौर के वक्त के हालात ने मुझे इतना परेशान किया है कि वक्तन फौक्तन मुझे मेरे आंसू निकलते हैं, मेरे आंखें तर होती रहती है। अब आखिरी शेर, ऐसा शेर जिसको हम लोग मक्ता कहते हैं, और मक्ता इसलिए भी कहते हैं कि शायर यहाँ आखिरी शेर में अपनी बात को मुनक़ते करता है, खत्म कर देता है कि यहाँ मेरी बात खत्म हो गई, मेरी शायरी खत्म हो गई। तो ऐसे शेर को हम मक्ता कहते हैं, और अक्सर ऐसे शेर में शायर अपना तखल्लुस भी बयान करता है। किया एक आन में तेगे कज़ा ने साफ दो टुकड़े, किया एक आन में तेगे कज़ा ने साफ दो टुकड़े, गुमा ही रह गया दुश्मन को आतिश अपने जोशन का। हम यहाँ देखो आखिरी शेर में मक्ते वाला शेर है, और मक्ते वाले शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं, शायर कहना चाहते हैं कि तैग लफ्ज आया, तैग के माने होते हैं तलवार, सैफ भी कहते हैं, शमशीर भी कहा जाता है। दूसरा लफ्ज आया कज़ा, अब कज़ा लफ्ज आया इसको कहते हैं मौत, यानी मौत की तलवार, मौत की शमशीर। शायर कहना चाहते हैं कि एक वक्त आया कि तलवार, मौत की तलवार चली, मतलब मौत का फरिश्ता आया और लम्हे के अंदर ही मौत आ गई। लेकिन शायर कहता है कि उसको गुमा ही रह गया दुश्मन को आतिश अपने जोशन का। शायर कहना चाहते हैं कि जोशन एक लफ्ज आया गया, और जोशन के माने होते हैं आईनी लिबास। आईनी लिबास मतलब लोहे का, जो जर्रे बख्तर होता है जंग वगैरह में इंसान या सिपाही जो रहते हैं वो अपने आप को सामने वाले दुश्मन से बचाने के लिए जो लिबास पहनते हैं उसको जर्रे बख्तर कहते हैं, आईनी लिबास। यानी इंसान जब आईनी लिबास पहनकर जाता है तो अपनी हिफाजत के लिए पहन के जाता है, लेकिन मौत आती है
تو جتنا بھی حفاظت کا سامان کیوں نہ محفوظ ہو یا موجود ہو، تو ایسے وقت میں موت اس کو یا وہ یہ حفاظت کرنے والی تمام چیز اس کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ شاعر کہنا چاہتے کہ مجھ کو گمان تھا کہ میں اس گمان میں رہ گیا کہ میرے پاس جوشن ہے، میرے پاس لباس ہے، آئینی لباس ہے، میں موت سے یا پھر برے حالات سے بچ سکتا ہوں، لیکن موت آئی، میرے دو ٹکڑے کر دی، اور موت آنے کے بعد مطلب موت جو آتی ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ شاعر نے ان تمام اشعار میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ انسان غموں سے چور رہتا ہے، انسان کے ساتھ نشیب و فراز ہے، دنیا کی تمام چیزیں موجود ہے، جس کی وجہ سے شاعر اپنے اشعار میں ان تمام چیزوں کا، اپنے احساسات کا، جذبات کا، تمام چیزوں کا اس نے اپنی غزل میں ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اس سے پہلے ہم نے ایک نظم پڑھی تھی جس کا نام خیر صفات رسول تھا۔ اس کی قواعد میں اور اس کے مشقی سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ نے جو سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی یا پھر کہیں سے سیرت کی کتابیں حاصل کرو، تو وہ آپ کو بتانا بھول گیا، ایک سیرت کی کتاب یہ بھی ہے، ہادی عالم۔ یہ سیرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا سیرت طیبہ پر پہلی غیر منقوط کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے تقریباً اس کے اوپر 416 صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، غیر مقطوع، یعنی ایسی کتاب جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ آئندہ انشاءاللہ یہ آپ کو مطالعے کے لیے دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔